We have already completed the topic of lifting machines, and in the next class, that is tomorrow, we will be starting with a completely new unit of your syllabus, and that is friction. But today, before going to the topic of friction, since you have a lot of lifting machines, in a total, you have 13 lifting machines. So you can expect some small numericals out of these lifting machines, uh, which you should know. So in today's class, we will be dedicating our complete attention on numerical problems on lifting machines. So what are the questions that you can generally expect in your RTO exam from the topic of lifting machines? See, all the 13 lifting machines are listed with figures, with their derivations. Some of the derivations are not given in your notes, but the derivation has been completely discussed in our video lectures. So what you have to learn regarding these machines is you have to learn how to draw a simple diagram of every lifting machine. It should be simple. No need to draw three-dimensional diagrams. You should be able to label them like this. All the labeling should be there. The expression for mechanical advantage or velocity ratio should be learnt by you by heart. जैसे कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलिस का वेलोसिटी रेशियो कितना है, तो फटाक से मेमोरी से आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी रेशियो इज 2 raised to power n, where small n is the number of movable pulleys, because in the first system of pulleys there is one pulley which is non movable, all the other pulleys are movable. तो इस तरीके से याद होना चाहिए, ये फिगर भी याद होना चाहिए. फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलिस बोला, फटाक से ये फिगर बनाना आना चाहिए, वेलोसिटी रेशियो का एक्सप्रेशन याद होना चाहिए. सेकेंड सिस्टम ऑफ पुलिस बोला, ये फिगर याद होना चाहिए, वेलोसिटी रेशियो का एक्सप्रेशन आना चाहिए. थर्ड सिस्टम ऑफ पुलिस बोला, ये सिस्टम याद होना चाहिए, velocity ratio का expression याद होना चाहिए. So like this, for all the 13 machines, you should be able to reproduce a simple figure like this. अब जैसे इसके figures मैंने आपको बताए थे, इसमें ये frame वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है. You can make a very simple image like this. Simple wheel and axle बोलेंगे तो आप ऐसा figure बनाइए. ये axle हो गया, ये व्हील हो गया, बस इतना सा. ठीक है, व्हील के ऊपर आप एक रस्सी बना करके ऐसे ऐसे रस्सी बना दीजिए एंड से कि या हियर माय एफर्ट इज कमिंग. यहाँ पर लोड बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस पार्ट इज बीइंग पुल्ड डाउन विथ योर हैंड्स. तो बोला कि यहाँ पर मैं एफर्ट लगा रहा हूँ. लेबलिंग इस तरह से करो कि दिस इज माय व्हील एंड दिस इज माय एक्सल. एक्सल के ऊपर लोड को लटकाते हैं अपन. मेक सम रोप्स लाइक दिस. दिस इज योर डायग्राम, एज सिंपल एज दैट. इसके डायमीटर्स बताओ कितने कितने थे. यू डिमार्केट दिस एज स्मॉल डी, diameter capital D. बस फिगर हो गया आपका. And now you express your derivation and the expression for velocity ratio and all. That's it. इस तरह के simple figures बनाने हैं आपको. ये सब मैंने वीडियो में आपको बता रखा है कैसे simple images बनानी है. You don't have to go for three-dimensional images. If you are comfortable with three-dimensional images, go for it. ठीक है, ये आपकी चॉइस है, लेकिन ऐसे फिगर्स काफी हैं. This you should remember. And the most important thing in engineering mechanics exams is to save time. आपको टाइम वेस्ट नहीं करने का है बिल्कुल भी. आप बहुत इलेबोरेट, बहुत ब्यूटीफुल फिगर बनाएंगे, यू शुड रिमेंबर कि 15 मिनट अगर फिगर बनाने में खराब कर दिए, इट कैरीज ओनली दैट मच मार्क्स. आपको बहुत सुंदर फिगर बनाने के कोई 15 नंबर नहीं देने वाला है. अगर वो फिगर बनाने के 2 नंबर हैं, तो सुंदर फिगर और काम चलाओ फिगर दोनों को 2 नंबर ही मिलेंगे. So always strategize in such a way so that you save your time in exams, so that tough numerical problems get more time from your side,
so that you can solve and think about them easily. ठीक है, anyway, let us go to the first numerical. Now what I want you to do is I want you to solve this question along. सर हाँ बोलो. सर नमिता सोनी मैम ने भी क्लास ज्वाइन करने के लिए लिंक भेजी है। क्या नमिता सोनी मैडम क्या कर रही हैं? उन्होंने क्लास ज्वाइन करने के लिए लिंक भेजी है अभी। कौन सी क्लास है, किस चीज के लिए है? हेलो हाँ, कौन सी चीज के लिए क्लास ले रहे हैं वो? साइंस की, किसकी? मटेरियल साइंस की। नहीं, मटेरियल साइंस की क्लास अभी कैसे हो सकती है, अभी तो अपनी क्लास है. सर वो पता 11 नहीं। बजे वाली क्लास का लिंक भेजा होगा मैम ने। हाँ 11 बजे अरे वो वाला. बोल रही है ज्वाइन द क्लास नाउ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, वो गलतफहमी हो गई होगी उनको. नो नीड टू ज्वाइन, आप बिल्कुल उसको इग्नोर कर दो. अभी अपनी क्लास चल रही है, 11 बजे तक अपनी क्लास ही चलेगी. ठीक है. ओके सर। Until and unless there is an order from HOD या कोई कमिटी की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आता है, अपन को क्लास डिस्टर्ब नहीं होने देनी. आप तो यहाँ पे पढ़ाई करो आराम से. ओके सर। अच्छा, अब आप लोग एक काम करो. Those who are sincerely interested in solving the numericals and understanding the concepts, take out your calculators and take a copy and a pen. पेपर, पेंसिल, पेन या कॉपी, कुछ भी चीजें ले लो, लिखने का सामान, और एक कैलकुलेटर ले लो. ठीक है. और प्रॉब्लम को मेरे साथ साथ सॉल्व करो. नाउ लुक एट द प्रॉब्लम. मैं आपको इसका तरीका भी बताऊंगा कि एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है. ठीक है. सो सपोज दिस इज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. तो पहले तो क्या है, 2 मिनट तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़ने का है. अ वेट ऑफ 450 न्यूटन इज टू बी रेज्ड बाय मींस ऑफ व्हील एंड एक्सल. जैसे ही व्हील एंड एक्सल दिखा, सबसे पहले तो रिकॉल इन योर माइंड कि व्हील एंड एक्सल कैसा दिखता है. ये है आपका व्हील एंड एक्सल. दिस इज हाउ योर व्हील एंड एक्सल लुक्स. ठीक है. ये एक्सल है, इसके ऊपर रस्सी लपेट करके वेट लटका रखा है, और ये व्हील है. व्हील को जब आप रोटेट करते हो, ये 2D फिगर है. इसका 3D फिगर बनेगा तो ऐसा बनेगा. ये देखो, लेट मी ड्रॉ इट. ऐसा है. सो व्हेन यू रोटेट द व्हील in this direction, then the weight will be lifted upward. ये कॉन्सेप्ट है इसका, सिंपल व्हील एंड एक्सल का. दैट्स ऑल. ठीक है. तो अब आपको इसके वेलोसिटी रेशियो का एक्सप्रेशन याद होना चाहिए. वेलोसिटी रेशियो का एक्सप्रेशन जो है, लेट अस सी. सिंपल व्हील एंड एक्सल का क्या है? कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज डब्ल्यू बाय पी. कितना लोड लिफ्ट कर रहे हो, कितना एफर्ट लगा रहे हो. ठीक है. and efficiency is always mechanical advantage by velocity ratio. But let us see. मेनली तो आपको सिर्फ वेलोसिटी रेशियो याद होना चाहिए, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं चाहिए. ठीक है. कैपिटल डी क्या है? व्हील का डायमीटर. स्मॉल डी क्या है? एक्सल का डायमीटर. ठीक है. नाउ लेट अस गो टू द प्रॉब्लम एंड सी व्हाट इट इज आस्किंग. तो व्हील एंड एक्सल की बात हो गई, तो अपना फिगर तो आपने बना ही लिया. अच्छा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ माइंड में याद होना चाहिए. अगर कोई डेरिवेशन आता है तब फिगर बनाना है. ठीक है. ओके, नाउ इट सेज एक्सल इज 100 mm diameter and wheel is 50 mm diameter. So now in your answer book what are you going to see? आंसर बुक में आपको ऐसे लिखना है, ये देखो. दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी ऑफ आर्टिकुलेटिंग योर आंसर्स. आंसर्स को कैसे लिखते हो बेटा, ये भी बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन में, क्योंकि कई जनों का माइंड शार्प होता है, उनको क्वेश्चंस भी आता है, लेकिन उनका जो प्रेजेंटेशन का तरीका है इतना खराब होता है कि वो सब कुछ आते हुए भी अपने मार्क्स लूज करते हैं. वो इसीलिए क्योंकि उनको आर्टिकुलेट करना नहीं आता. नाउ वंस यू आंसर द क्वेश्चन, जैसे आपने ये लिखा आंसर नंबर 1. ठीक है. क्लियरली पहले तो आंसर कॉपी में अपने लेफ्ट मार्जिन के अंदर बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट करो कि किसका आंसर दे रहे हो. ये भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम देखी है कि वो आनन फानन में, पता नहीं किसी उधेड़ बुन में दमादम दमादम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और ये चीज भूल जाते हैं कि आपके आंसर्स का बिल्कुल करेक्ट
लोकेशन आपको वहां पर मार्क करना है। तो किसी क्वेश्चन के सब पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, वो सब क्लियरली लिखना है। आंसर नंबर 1 पार्ट 1, आंसर नंबर 2 पार्ट 2, और उसके सामने ही आंसर लिखना है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। अगर इन चीजों की क्लैरिटी नहीं है तो एग्जामिनर इरिटेट हो जाता है और आपके 2-3 नंबर ऐसे ही उड़ा देता है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू करेक्टली गिव विच आंसर यू आर अटेम्प्टिंग राइट नाउ। तो आंसर नंबर 1 लिखा अपन ने। और सबसे पहली चीज न्यूमेरिकल्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, what is the given information, you briefly write it in the terms of the correct annotation in your answer book। तो अब अपन को क्या क्या चीजें दे रखी हैं वापस से पढ़ें। एक्सल इज 100 mm डायमीटर, एक्सल को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो राइट डी इज इक्वल टू 100 mm। ये इंफॉर्मेशन कॉपी कर ली। नेक्स्ट, व्हील इज 500 mm डायमीटर, व्हील को अपन कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, if the force is 120 Newton which has been applied to the wheel। अब मेरे को आप ये बताओ, ये 120 न्यूटन अपने इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी में मैं क्या चीज लिखूं इसको, व्हाट इज 120 न्यूटन बताओ आपके Effort, पास। ये एफर्ट है, और एफर्ट को अपन कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? capital P, कैपिटल पी। कितना दे रखा है? 120 न्यूटन। ओके, तो 120 न्यूटन। प्लीज नोट कि मैं जब गिवन डेटा को कॉपी कर रहा हूं तो उसकी प्रॉपर यूनिट भी साथ में लेके आ रहा हूं। कई बार क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है कि प्रॉब्लम मुश्किल नहीं है, you just need to apply the formula and solve it, but the trick that the question paper setter puts in the question is he changes the unit। वो स्मॉल डी को मीटर में दे देगा और कैपिटल डी को एमएम में दे देगा, और आप लोग सीधे डी बाई डी का फॉर्मूला लगा के फट 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 सॉल्व कर दोगे और इस चीज को भूल जाओगे कि इनकी यूनिट अलग अलग है। सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड टेक डाउन द यूनिट्स ऑल्सो। ये भी बहुत जरूरी है, यूनिट साथ साथ चलनी चाहिए, और आंसर देते टाइम भी आपके आंसर का क्या यूनिट है वो भी साथ में आना चाहिए, until and unless it is a dimensionless quantity। So anyway, let us move on। P दे दिया, बस इतना ही गिवन डेटा है। अब अपन को क्या क्या फाइंड करना है? फाइंड मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी ऑफ मशीन। ठीक है, अब आपको क्या क्या फाइंड करना है ये क्वेश्चन मार्क है। मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, वेलोसिटी रेशियो कितना है, और एफिशिएंसी कितना है। दैट्स इट। एंड नाउ once you know what is the given data and what is the required data, you go for the equations that you remember। अब पहली चीज अपन टेकअप करते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है बताओ? W/P। कैपिटल W बाई P। W/P, लोड अपॉन एफर्ट। ओके, अब ये बताओ कि क्या आपको लोड की वैल्यू दे रखी है क्या? इसमें एक चीज अपन गिवन डेटा में लेना भूल गए थे, अ वेट ऑफ 450 न्यूटन इज टू बी रेज्ड। ठीक है, तो अपन को गिवन डेटा में ये चीज भी दे रखी है। सो लेट अस इंक्लूड दिस आल्सो, W इज इक्वल टू 450 न्यूटन, ये भी गिवन डेटा है। सो सी, डू यू हैव W and P विथ यू इन द गिवन डेटा? यस सर। ठीक है, तो क्या 450 डिवाइडेड बाय 120 होगा क्या इसका आंसर? यस सर। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट अ सिंपल कैलकुलेशन। नाउ व्हाट इज द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी रेशियो? अगला क्वेश्चन वेलोसिटी रेशियो का पूछा हुआ है। व्हाट इज द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी रेशियो फॉर सिंपल व्हील एंड एक्सल? small d by d, capital D, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। करेक्ट इक्वेशन इज कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। स्मॉल डी बाय कैपिटल डी कर दे तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, एनीवे कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। क्या ये दोनों इंफॉर्मेशंस भी दे रखी है क्या? यस सर। कैपिटल डी 500, स्मॉल डी 100, तो 500 डिवाइडेड बाय 100, वेलोसिटी रेशियो इज सिंपली 5। नाउ द थर्ड थिंग दैट इज आस्क्ड इज व्हाट इज द एफिशिएंसी? एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला है बताओ? किसी भी लिफ्टिंग मशीन का एफिशिएंसी का फॉर्मूला फिक्स है, व्हाट इज दैट?
मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। MA/VR। MA/VR, सही। अब आपने चूंकि मैकेनिकल एडवांटेज भी निकाल लिया और वेलोसिटी रेशियो भी निकाल लिया, तो एफिशिएंसी सिर्फ इन दोनों को रेशियो में पुट करना है। अब आप सोचोगे कि यार ये तो बिल्कुल ही छोटा सा क्वेश्चन और आसान सा क्वेश्चन था, क्या ये आता है क्या? 100% ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, आपको बस पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। तो सच स्मॉल क्वेश्चंस इंप्रूव योर कॉन्फिडेंस। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं ये, और 2 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं आपके आरटीयू में, आपको पता ही होगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आ सकते हैं 2 नंबर में, और लेकिन जनरली 2 नंबर के क्वेश्चंस में आपके डेरिवेशन, छोटे डेरिवेशंस या फिर छोटी आपकी डेफिनेशंस आ सकती है, डिस्क्रिप्शंस आ सकती है। 4 उसके आगे वाले जो हायर वेटेज वाले क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर सब पार्ट बन के ऐसे छोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज सॉल्व्ड बाय यू, दैट इज वेरी गुड। अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट मी जस्ट ट्राई टू कॉपी इट। ये पता नहीं कुछ कॉपी होने में प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। ओके, नाउ इन अ सर्टेन लिफ्टिंग मशीन, अब ये लिफ्टिंग मशीन कौन सी है ये भी नहीं बोल रहा। An effort of 100 Newton is just able to lift a load of 850 Newton। ठीक है, तो अब फटाक से आप देख लो इसमें कहीं पर भी कोई मेंशन है क्या कि भाई मशीन कौन सी है? व्हील एंड एक्सल है, वर्म गियर है, कुछ नहीं दिया हुआ। तो आप तो एक काम करो, प्रॉब्लम नंबर 2 लिखो। सो आंसर नंबर 2, अपन आंसर कॉपी में ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। पहले प्रॉपरली लिखो किसको अटेम्प्ट कर रहे हो, देन गिवन डेटा, स्टार्ट करो। क्या क्या दिया हुआ है? सॉरी, व्हाइट बोर्ड, हाँ। एफर्ट ऑफ 100 न्यूटन was able to lift a load 850 न्यूटन। बताओ डेटा में क्या क्या लिखूं, क्या क्या गिवन है बताओ। सर W is equal to 850 Newton। W is equal to 850 न्यूटन and effort P is equal to 100 न्यूटन। ठीक है, आगे चलें। कैलकुलेट द एफिशिएंसी and the friction both on effort and load sides if the velocity ratio of the machine is 10। तो वेलोसिटी रेशियो भी गिवन है, इसको भी कॉपी कर लेता हूं। वेलोसिटी रेशियो इज गिवन एज 10। ठीक है, और क्या क्या कैलकुलेट करना है? एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है, फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है, बोथ ऑन एफर्ट एंड लोड साइड। इसको अपन समझेंगे, एक बार अपन को रिकॉल करना पड़ेगा पहले अपन ने क्या पढ़ा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। एक चीज तो पूछ रहा है एफिशिएंसी कितनी है, दूसरा पूछ रहा है फ्रिक्शन एफर्ट साइड पे, और तीसरा पूछ रहा है फ्रिक्शन लोड साइड पे। पहले अपन एफिशिएंसी को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, अगर एफिशिएंसी को पूछ रहा है तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताओ पहले। MA/VR। MA/VR। क्या VR गिवन है? इट इज ऑलरेडी गिवन, तो VR तो पता है। MA गिवन है क्या? नो सर, निकाल सकते हैं लेकिन निकाल सकते हो। MA क्या चीज है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर MA? सर W/P। W/P। और चूंकि W और P दोनों दे रखे हैं, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ डिवाइडिंग देम। तो ये तो मैं सीधे देख रहा हूं, 850 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो जाएगा? 8.5 हो जाएगा। वेलोसिटी रेशियो 10 है, तो एफिशिएंसी कितना हो गया? 8.5। 0.8। ये हो गया 0.85। तो फ्रैक्शन में तो एफिशिएंसी को आप लिख सकते हो 0.85, और अगर आपसे कोई परसेंटेज में पूछे कि व्हाट इज द परसेंटेज एफिशिएंसी, इसको कैसे लिखोगे बताओ?
0.85 multiply का कर देंगे। मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है। सो एफिशिएंसी परसेंटेज इज 85%। ठीक है, तो 85% की एफिशिएंसी की मशीन के साथ काम कर रहे हो, तो आपने फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन तो खत्म कर ही दिया है। अब आती है दो चीजें जिसके लिए आपके कॉन्सेप्ट और थोड़े से क्लियर होने चाहिए। फ्रिक्शन ऑन एफर्ट साइड एंड फ्रिक्शन ऑन लोड साइड, ये क्या क्या चीजें हैं? अपन को पता है कि एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट ही लिफ्टिंग मशीन्स में किस कारण से आता है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के होने के कारण ही एफिशिएंसी में लॉस होता है। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ फ्रिक्शन? आपको ये बताया है, एक मैंने छोटा सा फॉर्मूला दिया था, कभी भी अगर फ्रिक्शन के कारण लोड लॉस या फ्रिक्शन के कारण एफर्ट का लॉस या फ्रिक्शन ऑन लोड साइड, फ्रिक्शन ऑन एफर्ट साइड या फ्रिक्शन इन लिफ्टिंग मशीन्स की कहीं भी बात आ जाए, anywhere, in any form, the only formula that you need to remember is P into VR is equal to W. If you remember one of my early lectures in lifting machines, तो लॉ ऑफ मशीन्स की जब अपन पढ़ाई कर रहे थे तो आपको ये एक फॉर्मूला बताया था और ये कहा था कि एक सिनेमा हॉल के लाइन का कॉमन नाम है पीवीआर, और ये याद रखने में आसानी होगी। यस सर। पीवीआर इज इक्वल टू डब्ल्यू लिख दो तो आपकी फ्रिक्शन से रिलेटेड लिफ्टिंग मशीन की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब देखो इससे आगे क्या चीज आपको डिराइव हो सकती है। अगर आपको आइडियल एफर्ट निकालना है तो आप वापस से लिखो पीवीआर इक्वल टू डब्ल्यू और आई पी पे लगा दो, तो ये फॉर्मूला हो गया आइडियल एफर्ट का। अब इससे आइडियल एफर्ट कैसे निकलेगी? you simply take VR to the other side. So ideal effort is equal to W by VR. अपने आप आ गया फॉर्मूला। अब अगर आपसे कोई पूछे कि आइडियल लोड कितना है, अगेन यू राइट PVR is equal to W, वापस से वही फॉर्मूला रिप्रोड्यूस किया एंड नाउ राइट द I with W, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका आइडियल लोड का। सो आइडियल लोड इज सिंपली P into VR। ये देखो आसानी से दो नए फॉर्मूले बन गए आपके। ये फॉर्मूला अलग से याद करने को कहा जाता है आपको, ये फॉर्मूला अलग से याद करने को कहा जाता है आपको, लेकिन आपको फॉर्मूला याद सिर्फ ये करना है, बाकी फॉर्मूले इससे अपने आप आ गए। सो एनीवे, once you have the expression for ideal effort and ideal load, now these things are just child's play। अब फ्रिक्शन ऑन एफर्ट साइड को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन। इसका P अलग minus PI। ठीक है। अब ये एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन ये है कि आइडियली कितना एफर्ट लगाना पड़ता एक लोड को उठाने के लिए, पीआई, लेकिन फ्रिक्शन के रहते आपको कितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है वो ज्यादा है, पी। तो P माइनस पी आई इज योर एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन। अब बताओ आपके पास में एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन या फिर जिसको आपके क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रिक्शन ऑन द एफर्ट साइड, ये वही सेम चीज है। फ्रिक्शन इन द एफर्ट साइड इज एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन, यानी कि आपको कुल मिला के P माइनस पी आई निकालना है। नाउ गो इनटू योर प्रॉब्लम वंस अगेन। गिवन डेटा के हिसाब से आपका P कितना है? 100 न्यूटन। 100। ये गिवन है, तो आपको P तो मिल गया 100 माइनस पी आई का फॉर्मूला क्या है? W अपॉन बी आर। अब देखो क्या W आपको गिवन है? बिल्कुल गिवन है, 850 न्यूटन। क्या VR आपको गिवन है? बिल्कुल गिवन है, 10। तो यहां पर लेके आ जाओ इसको। W इज कितना था, मैं भूल गया, 850 था। यस सर। यस, 850 न्यूटन और वेलोसिटी रेशियो वाज 10।
100 minus 85 is 15. 15 Newton. Always remember to put the unit. This is your answer. यानी कि 15 न्यूटन का एफर्ट लॉस है आपके इस मशीन में। यानी कि 100 किलो का लोड उठाने के लिए आपको जितना एफर्ट लगाना पड़ता आइडियल मशीन में, उससे 15 न्यूटन ज्यादा लगाना पड़ रहा है आपको। दिस इज द कॉन्सेप्ट। नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, फ्रिक्शन ऑन द लोड साइड वो कैसे निकालते हैं भाई? WI जो है ये है कि एक एफर्ट लगा के कितना मैक्सिमम लोड आप उठा सकते हो, और W है कि उसी एफर्ट को लगा करके फ्रिक्शन की प्रेजेंस में कितना लोड उठा पाओगे। तो WI W से ज्यादा है। तो इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, दिस इज द एफर्ट लॉस्ट, सॉरी एफर्ट नहीं, लोड रिड्यूस्ड ड्यू टू फ्रिक्शन, या फिर इसको कई केसेस में द फ्रिक्शनल लोड भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लोड ऑफ फ्रिक्शन, या फिर जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है, फ्रिक्शन ऑन द लोड साइड। कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी बोल लो इसको, अपन को करना तो यही है। क्या ये आप लोग अपने आप कर सकते हैं? WI का फॉर्मूला क्या है? P इंटू VR। VR दे रखी है, P दे रखी है, ऑलरेडी गिवन है, तो WI मिल गया। W खुद गिवन है, तो सीधे सीधे इन दोनों चीजों को माइनस करो और फ्रिक्शनल लोड या फ्रिक्शन ऑन लोड साइड निकाल लो। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको? यस सर। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Let us read the question carefully. There are 4 pulleys in a third system of pulleys. तो सीधे सीधे बात हो रही है थर्ड सिस्टम ऑफ पुलिस की, तो चलते हैं अपन थर्ड सिस्टम ऑफ पुलिस में। ये रहा, दिस इज योर थर्ड सिस्टम ऑफ पुलिस। ओके, थर्ड सिस्टम ऑफ पुलिस का वेलोसिटी रेशियो, जैसा मैंने कहा, यू हैव टू रिमेंबर इट बाय हार्ट। ये बोलता है वेलोसिटी रेशियो इज 2 raised to power n minus 1, where n is the number total of n number of pulleys। तो थर्ड सिस्टम ऑफ पुलीज में फिक्स्ड पुली और मूवेबल पुली का कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको सीधे सीधे n जो है, टोटल कितनी पुलीज हैं वो याद रखनी है, ठीक है? तो 2 raised to power n minus 1 सीधे सीधे वेलोसिटी रेशियो मिल जाएगा। नाउ लेट अस गो बैक टू द क्वेश्चन। देयर आर 4 पुलीज इन अ थर्ड सिस्टम ऑफ पुलीज, ठीक है? आंसर नंबर 3 गिवन। अब बताओ मेरे को ये क्या चीज है? 4 पुलीज, व्हाट इज दिस 4? क्या पैरामीटर है ये? Small n. Small n. So I will say that in the third system of pulleys, small n is equal to 4. आगे चलें। An effort of 150 Newton is required. P is equal to 150 Newton. 150 To lift an unknown weight. Weight नहीं बता रखा, और क्या बता रखा है? Efficiency of the machine is 75%. कॉपी कर लो। एफिशिएंसी 75% दे रखी है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में 75% नहीं यूज करूंगा, मैं क्या यूज करूंगा? 0.75। 0.75। ठीक है, ये याद रखना है आपको। आप परसेंटेज बोलते हैं सिर्फ, यूज में तो आपके 0.75 आएगा। ओके, अब आपको निकालना क्या है? इज आस्किंग यू टू फाइंड द वेट लिफ्टेड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W? ठीक है, अब देखो इसमें क्या कर सकते हो। अब इसमें मैं हिंट नहीं दूंगा, आप मेरे को खुद कोई स्ट्रेटेजी बताओ इसमें क्या कर सकते हैं। इसमें डायग्राम भी बनाना है। डायग्राम की जरूरत ही नहीं है अपन को, आप तो सिर्फ ये देखो, वेलोसिटी रेशियो फॉर अ थर्ड सिस्टम ऑफ पुलीज इज 2 raised to power n minus 1। फिगर बनाना नहीं है आपको इसमें, नो नीड टू ड्रॉ द फिगर, आप तो सिर्फ इतना बोल दो। देखो जो मैंने आपको
आपको स्क्रीन में दिखा रखी है ना? हाँ बोलो बोलो। सर वेलोसिटी रेशियो निकाल के एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वेरी गुड, दैट इज द करेक्ट स्ट्रेटजी। सबसे पहले वेलोसिटी रेशियो निकाल लो कि वैल्यू कितनी आ रही है। एन की वैल्यू कितनी है? 4। सो वेलोसिटी रेशियो इज 2 raised to power 4 minus 1, that comes out to be 15। वेलोसिटी रेशियो आपके हाथ में आ गई। अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि ये गिवन है तो यहां से पकड़ो इसको। एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो होता है, जिसमें वेलोसिटी रेशियो आपको पता है और एफिशिएंसी भी पता है, तो मैकेनिकल एडवांटेज निकल जाएगी। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी दे रखी है? 75% है, सो टेक इट एज 0.75। नाउ दिस बिकम्स इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो 15 है, तो मैकेनिकल एडवांटेज निकल गया। कितना है मैकेनिकल एडवांटेज? 15 इंटू 0.75। ये कैलकुलेटर से आप यूज करके निकाल लो। बट पूछा क्या है? W। अब बताओ आगे क्या करें? मैकेनिकल एडवांटेज पता एम क्या? पी दिया हुआ है, डब्ल्यू आ जाएगा एम और पी के सारे। मैकेनिकल एडवांटेज इज लोड अपॉन एफर्ट, जिसमें एफर्ट फिर दिया हुआ है। मैकेनिकल एडवांटेज आपने निकाल ली, तो अब W निकालने में क्या मुश्किल रह गई? तो मैकेनिकल एडवांटेज इज गिवन एज 15 इंटू 0.75, which is equal to W upon effort, which is again a given quantity in your problem, that is 150 Newton। अब इस 150 को यहां मल्टीप्लाई कर लो, लोड की वैल्यू आ जाएगी फलाना फलाना न्यूटन करके। दिस इज योर आंसर। ठीक है, वंस अगेन अ सिंपल प्रॉब्लम, only a little bit of extra effort was required to solve this, otherwise I would also call it as a straightforward problem। इसमें कोई ज्यादा बहुत ट्रिक्स नहीं थे, ये डायरेक्ट एप्लीकेशन ही था एक तरह से। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो अब अपन सॉल्व करने जा रहे हैं, इस तरह की क्वालिटी प्रॉब्लम्स अगर आ जाए तो 60% ऑफ स्टूडेंट्स मेरे मेरे एस्टिमेट से they would get stuck on this problem, although this is not a very difficult problem, but this is one problem that we can call as a tricky problem, जिसमें कि थोड़ा conceptualization चाहिए होगा आपको। ओके, लेट अस सी। लेकिन स्टेप वाइज तरीके से चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो वही सेम चीज आ गई वापस, सॉरी। प्रॉब्लम प्रोवाइड, चलो यहीं से देख लो आप इसको। With a wheel and differential axle, तो सबसे पहले तो व्हील एंड डिफरेंशियल एक्सल पे चलो। व्हील एंड डिफरेंशियल एक्सल का कॉन्सेप्ट एक बार याद करें कैसा होता है। ये तो व्हील है, दिस होल पार्ट इज द डिफरेंशियल एक्सल। डिफरेंशियल एक्सल क्या चीज है? बेसिकली इट्स अ स्टेप्ड पुली। ये छोटा एक्सल है, ये बड़ा एक्सल है। स्मॉलर एक्सल, लार्जर एक्सल, एंड द डायमीटर्स आर, स्मॉलर एक्सल का डायमीटर D2 से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, लार्जर एक्सल का D1 से रिप्रेजेंट करते हैं। लुक एट द कंटिन्यूटी ऑफ द रोप हियर। ये रोप देखो आप, स्मॉलर एक्सल से तो ये ऊपर से सामने की तरफ को आ रही है, लेकिन लार्जर एक्सल पे रोप पीछे की तरफ जा रही है, यहां पे आकर रुक गई, देख रहे हो? सो इट इज गोइंग टू द बैक साइड, सो आई विल ड्रॉ इट एज डॉटेड, डॉटेड लाइन से बनाऊंगा, और पीछे से आकर के यहां चढ़ के ऊपर आ रही है, ये देखो ऐसे आ रही है। नाउ व्हाट विल हैपन इफ आई रोटेट दिस व्हील बाय पुलिंग द रोप। अब ये देखो रोप इसमें सामने से आ रही है, तो इसको अगर मैं खींचूंगा, दिस इज अ 2-dimensional image and it is a little bit difficult for you to predict in which direction this is going to rotate। ठीक है, but if you can imagine a little bit,
हाँ, एंटी क्लॉकवाइज होगा अगर आप यहां से देखें तो, ठीक है, अगर आप यहां से देखेंगे तो क्लॉकवाइज होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज बोलना थोड़ा सा गलत है 2 डायमेंशनल इमेज में। यू हैव टू स्पेसिफाई कि एंटी क्लॉकवाइज व्हेन व्यूइंग फ्रॉम द राइट साइड, तब पूरी बात होगी। एनीवे, तो ये आपका व्हील जब घूमेगा, इवेंचुअली होना क्या है, लार्जर डायमीटर का ड्रम तो रस्सी को ऊपर खींचेगा और स्मॉलर डायमीटर का ड्रम रस्सी को नीचे छोड़ेगा। तो 2 थिंग्स आर हैपनिंग। अब ये देखो, एक पुल्ली हवा में लटक रहा है और इसके साथ में वेट लटक रहा है। तो लार्जर ड्रम एक रोटेशन में ज्यादा रस्सी खींचेगा और स्मॉलर ड्रम एक रोटेशन में कम रस्सी नीचे छोड़ेगा। तो कुल मिलाकर के जो इनका कंबाइंड इफेक्ट है कि भाई ऊपर भी रस्सी जा रही है, नीचे भी रस्सी आ रही है, लेकिन ऊपर जो रस्सी जा रही है वो ज्यादा जा रही है और नीचे जो रस्सी आ रही है वो कम आ रही है। तो इसका कंबाइंड इफेक्ट होगा कि स्लोली दिस हैंगिंग पुली विल स्टार्ट क्लाइंबिंग अपवर्ड्स। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट था। बट वंस अगेन मैं अब इसको पूरा डिफाइन करके एक्सप्लेन नहीं करूंगा। फॉर सॉल्विंग अ न्यूमेरिकल यू जस्ट नीड द बेसिक कॉन्सेप्ट। ये फ्रेम व्रेम नहीं बनाना है, ये सिंपल इतना सा इमेज बना दो बस। आप तो इतना सा इमेज आपको 2D में बना देना है। बस ये ध्यान रखना है कि ये रस्सी का आना और जाने का जो लोकेशन है और एफर्ट व्हील पे जो आपका रस्सी का लोकेशन है, ये करेक्ट होना चाहिए। भाई फिगर के हिसाब से अगर आपने ऐसा बना दिया कि इस रस्सी को खींचने से ये ऊपर चढ़ने की बजाय नीचे आ रही है, तो वो गलत हो जाएगा, वहां पर भी नंबर लूज हो सकते हैं। सो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू पे मोर अटेंशन टू, कि कौन से व्हील से रस्सी ऊपर से आ रही है और कौन से व्हील से रस्सी पीछे को जा रही है। और उसके साथ में ये भी याद रखना है कि एफर्ट व्हील पे रस्सी पीछे से ली है कि आगे से ली है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, सो दिस कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। ऑन द एफर्ट व्हील द रोप इज कमिंग आउट फ्रॉम द फ्रंट। ये देखो, ये फ्रंट से आ रही है। सो इफ द रोप इज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट इन द एफर्ट व्हील, तो लार्जर डायमीटर पे पीछे से जानी चाहिए और स्मॉलर डायमीटर पे आगे से आनी चाहिए। ये याद रखना है आपको। अगर इसको उल्टा सीधा कर दिया तो आपके फिगर बनाने के बावजूद भी आपके नंबर कट सकते हैं। ये समझ में आ गया क्या आपको? भाई अगर मैं इसको ऐसे बना दूं ना कि ये रस्सी तो ऊपर से ले ली और इसको पीछे से ले लिया और एफर्ट ड्रम पे सामने से रस्सी ले ली, तो ये वेट ऊपर चढ़ने की बजाय नीचे को चढ़ेगा। यू थिंक अबाउट इट, इसको थोड़ा सा सोच के देखना। तो ये आप इसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में भी लफड़ा नहीं कर सकते। you have to pay very close attention to the representation in your diagram. Here also you can lose marks. But anyway, let us go to the problem. सबसे मेन तो है इसका वेलोसिटी रेशियो का एक्सप्रेशन याद रखना। बस यही याद रखना और कुछ नहीं चाहिए। Velocity ratio is twice of capital D, which is the diameter of the wheel where you put the effort, divided by small d1 minus small d2. Small d1 diameter of larger drum, small d2 diameter of smaller drum, या फिर एक्सल। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन चाहिए अपने को। नाउ गोइंग बैक टू द प्रॉब्लम, विद अ व्हील एंड डिफरेंशियल एक्सल एन एफर्ट ऑफ 10 न्यूटन। ठीक है, ये देखो गिवन में एफर्ट ऑफ 10 न्यूटन को नोट कर लिया। आगे चलें, रेज्ड अ लोड ऑफ 50 न्यूटन, W is equal to 50 न्यूटन नोट कर लिया। If the efficiency of the machine at this load is 75%, अब देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको। आप बोलोगे यार एफिशिएंसी ऑफ मशीन एट दिस लोड का क्या मतलब है? नाउ दिस इज जस्ट टू रिमाइंड यू, ये अपन ने ऐसे पढ़ाई तो कर ली थी इसकी, लेकिन ये माइंड में अधिकतर लोगों के रहता नहीं है। इफ यू रिमेंबर, we had a graph between efficiency versus load, and this went like this. फिर आपने एक मैक्सिमम एफिशिएंसी का डॉटेड लाइन भी बनाया था। अगर आपको याद नहीं है तो लॉ ऑफ मशीन्स वाले लेक्चर में पीछे जाकर के देखें। सो द कॉन्सेप्ट इज एफिशिएंसी ऑफ एनी लिफ्टिंग मशीन इज नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी। आप एक पर्टिकुलर, जैसे बोल रहे हो कि मैं 100 किलो उठाता हूं अपनी मशीन से और 100 किलो या सॉरी 100 न्यूटन उठाता हूं अपनी मशीन से और 100 न्यूटन को ही उठाता हूं रोज और हमेशा, फिक्स है मेरा, तो उस केस में आपकी एफिशिएंसी फिक्स होगी। यहां पे आके फिक्स हो जाएगी एफिशिएंसी।
लेकिन जैसे ही किसी दिन कोई आदमी आकर के बोलता है कि साहब अब आज एक काम करो, 50 न्यूटन उठा लो सिर्फ, तो आपकी एफिशिएंसी चेंज हो जाएगी मशीन की। गॉट इट? So efficiency is not a constant quantity for machines. Efficiency depends and varies with the load that you are lifting. और जनरली ये देखा जाता है कि कम लोड उठा रहे हो अपनी मशीन से तो उसकी एफिशिएंसी कम रहती है, और अगर ज्यादा लोड मशीन से उठाते हो तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा हो जाती है। So efficiency, once again to remind you, is not a constant thing, and that is what they are saying कि 50 न्यूटन का लोड उठाते वक्त मशीन की एफिशिएंसी 75% है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, एफिशिएंसी तो दे रखी है, अभी फिलहाल तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 0.75 ले लो। नाउ व्हाट इज ही आस्किंग यू टू डू? फाइंड द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द मशीन। ठीक है, अभी तो फिलहाल इतनी इंफॉर्मेशन के साथ काम कर लो आप। इतना सा देखो, क्या ये वेलोसिटी रेशियो पता करने के लिए काफी है क्या? लेट अस गो बैक टू 1050.75। ठीक है, अब ये देखो, नो सर। नहीं बिल्कुल काफी है। एफर्ट आपने 10 न्यूटन का लगाया, लोड आपने 50 न्यूटन उठाया, एफिशिएंसी 75% है, 0.75 है, हाँ सर, बिल्कुल काफी है। हमें निकालने से रेशियो पहले तो फिर पूछ रहा है आपसे लगा के PR निकाल देंगे। भाई, पी और डब्ल्यू दिया हुआ है तो मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। मैकेनिकल एडवांटेज की यूनिट क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ Unitless. मैकेनिकल एडवांटेज? Unitless. It is dimensionless. Correct answer. What is the unit of velocity ratio? सर ये भी unitless. Unitless. ये भी unitless या dimensionless है। ठीक है, चलो, anyway, efficiency is given. Now you know the mechanical advantage. So what is there to find velocity ratio? Efficiency is equal to mechanical advantage upon velocity ratio. आपको efficiency पता है, mechanical advantage पता है, तो velocity ratio तो निकल ही जाएगी ना, कुछ नहीं बचा अब इसमें। So let us leave this. इसके ऊपर अब ज्यादा अपन डिस्कस ही नहीं करते, हो गया ये, आगे चलते हैं। Now further the question says if the diameter of the effort wheel is 400। अब देखो effort wheel कौन सा है? कैपिटल डी। ठीक है, तो एफर्ट व्हील का डायमीटर 400 mm, कैपिटल डी ले लिया। डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन द डायमीटर्स, यानी कि आपको क्या निकालने को पूछ रहा है? ये बोल रहा है कि D1 माइनस D2 निकालो। क्यों? डिफरेंस बिटवीन द डायमीटर्स ऑफ द एक्सल्स। अब आपको पता है कि डिफरेंशियल एक्सल वाले में दो एक्सल होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, लेकिन एक्सल एक तो कम डायमीटर का होता है, एक ज्यादा डायमीटर का होता है। तो ये बोल रहा है कि जो आपने डिफरेंशियल एक्सल लिया है उसमें बड़ा डायमीटर में से छोटा डायमीटर माइनस करूं तो कितना आएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, अजीब सा क्वेश्चन पूछ रहा है ये, बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अच्छा, अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है? इफ द सम ऑफ डायमीटर्स ऑफ एक्सल्स इज 300, सम ऑफ डायमीटर दे दिया इन्होंने, D1 plus D2 300 mm दे दिया है। नाउ इट इज आस्किंग फाइंड द डायमीटर ऑफ ईच एक्सल। तो आपको दो चीजें निकालनी है अभी। ठीक है, लेट अस गो बैक, यहां पर आते हैं। D1 plus D2 is given as, कितना दे रखा है? 300। सर आ जाएगा इसका भी, समझ में आ गया क्या होगा? आ जाएगा, वेरी गुड, बट लेट अस डिस्कस फॉर द होल क्लास। ट्रिक बताओ। जिन्होंने अपने मन में सॉल्व कर लिया है इसको, दैट इज वेरी गुड, बट प्लीज बी पेशिएंट। ठीक है, और क्या दे रखा है? कैपिटल डी 400 mm। अब ये दो चीजें पूछ रहा है, एक तो पूछ रहा है कि D1 माइनस D2 कितना होगा, दूसरा ये पूछ रहा है कि
D1 और D2 दोनों की वैल्यू कितनी, D1 कितना है और D2 कितना है। ठीक है, अब बताओ क्या स्ट्रैटेजी है इसकी। नाउ जिन लोगों ने इसको फिगर आउट कर लिया है, सर speak up। एक एक सर करके। इसमें पहले तो सर इसमें पहले वी आर निकाला हुआ है अपना, और D1 माइनस D2 निकल जाएगा क्योंकि कैपिटल डी गिवन है अपने को, और D1 माइनस D2 निकल गया, और D1 प्लस D2 है ये अपने पास में, तो इन दोनों को सर दो इक्वेशन इक्वेशन बना के आएगी सर, दो इक्वेशंस दो वेरिएबल्स सॉल्व हो जाएगा। वेरी गुड, एक्सेलेंट। आपने दोनों ने जिन्होंने ये बात कही है बिल्कुल सही कहा है, आई एम हैप्पी अबाउट इट। तो सबसे पहले तो ये देखो कि वेलोसिटी रेशियो तो मशीन की आपने रट ही रखी है, और इसकी वेलोसिटी रेशियो क्या चीज है, द वेलोसिटी रेशियो ऑफ योर डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल इज 2D अपॉन D1 माइनस D2। यहीं पर आपका आंसर बैठा हुआ है। ठीक है, तो अपन चलते हैं। वेलोसिटी रेशियो इज, सॉरी, 2D अपॉन D1 माइनस D2। वेलोसिटी रेशियो आपने प्रीवियस स्टेप में निकाल ली थी, यहां पर जब मैकेनिकल एडवांटेज गिवन था और एफिशिएंसी गिवन थी और आपसे वेलोसिटी रेशियो मांगा गया था, तो आपने निकाल ली। सो इफ वेलोसिटी रेशियो इज नोन एंड कैपिटल D इज ऑल्सो गिवन, कैपिटल D 400 mm दे रखा है आपको। ठीक है, ये देखो 400 mm कैपिटल D गिवन है, तो कैपिटल D पता है, वेलोसिटी रेशियो पता है, तो क्या D1 माइनस D2 निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। अब जैसा कि इन्होंने कहा कि आपको D1 माइनस D2 इक्वल टू पता है, D1 प्लस D2 300 दे रखा है, तो D1 प्लस D2 भी पता है। तो पहला आंसर तो आ ही गया, D1 माइनस D2 कितना है, दिस यू ऑलरेडी नो नाउ, ये आंसर तो मिल ही गया। तो अब अगर आपको ये दोनों कॉम्बिनेशन में पता है, तो फिर अब आप ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस की तरह से सॉल्व कर, सॉरी आई एम नॉट शोइंग इट, ये देखो D1 माइनस D2 पता है, D1 प्लस D2 पता है। पहला आंसर आपको आ गया, D1 माइनस D2 कितना है, दिस यू ऑलरेडी नो नाउ, सो दिस आंसर इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड। द सेकेंड वन इज D1 एंड D2 इंडिविजुअली कितने हैं। तो अब आप इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। कैसे करते हैं साइमल्टेनियसली सॉल्व, put this as equation number 1 and put this as equation number 2 and then add 1 and 2। जब 1 और 2 को ऐड करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, 2D1 इक्वल टू समथिंग आएगा, ये नंबर्स में आएगा। तो आपको D1 पता लग जाएगी, D1 पता लग गई तो इन दोनों में से किसी भी एक में ले जाकर के D1 रखो तो D2 पता लग जाएगी। ठीक है, Sir, D1 is equal to 210 mm and D2 is equal to 90 mm. देख लेते हैं अगर आपने निकाला है तो। ये आ गया सॉल्यूशन इसका, D1 210 mm एंड D2 इज 90 mm। ठीक है, Yes, sir. ओके, नाउ फाइंड द एफर्ट रिक्वायर्ड 8.5। ठीक है, अब अपने पास इतना टाइम ही है कि अपन ये ज्यादा कर नहीं पाए। ये देखो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं मैंने आपको बताए थे लेक्चर नंबर 15 के एंड में। हियर सॉल्व प्रॉब्लम्स 8.1 to 8.11 फ्रॉम डीपी शर्मा। डीपी शर्मा की बुक आपके पास में है, पेज नंबर 343 पे जाएंगे तो 8.1 से स्टार्ट हो जाएगा। ये 11 प्रॉब्लम्स जो हैं ये आज के आज आप कंप्लीट करके देखें। जिन इतने जितने मैंने करवा दिए आज वो तो हो ही गए, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्फिडेंस मैं आपको 8.10 एक बार अपने हाथ से करवाना चाहता हूं, क्योंकि 8.10 में इन्होंने जो सोल्यूशन दिया हुआ है बहुत लंबा चौड़ा है, उतने लंबे चौड़े सोल्यूशन की जरूरत नहीं। नाउ लुक एट दिस प्रॉब्लम, लेट मी ट्राई टू कॉपी इट। चलो ये तो आ गया।
load of 10 kilonewton is raised by means of a screw jack. screw jack के ऊपर जाना है अपने को. This is your screw jack. ठीक है. स्क्रू जैक अगर आपको याद हो तो अपन ने सबसे ज्यादा टाइम लेके पढ़ाई की है स्क्रू जैक की. दिस इज योर स्क्रू जैक. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट नाउ, आपको स्क्रू जैक में 2-3 टर्म्स याद रखनी है. ठीक है, मैं उन टर्म्स को कॉपी करके ले लेता हूं जो कि आपको याद रखनी है. मैकेनिकल एडवांटेज की एक टर्म डिराइव हुई थी, सो आई विल राइट इट डाउन. 2L/D cot alpha plus phi. मैकेनिकल एडवांटेज इज 2L/D into cot of alpha plus phi. मैं आपको इसमें सिर्फ हिंट देके छोड़ रहा हूं, पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा. ठीक है, ओके. और क्या बोलता है, सॉरी, इसमें और क्या चीज याद रखनी है, वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ स्क्रू जैक इज 2L/D cot alpha. ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो इज 2L/D cot alpha. ओके. और एफिशिएंसी ऑफ द मशीन के लिए आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है. आप सीधे सीधे अगर आपने वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज रट लिया है तो फिर वेलोसिटी रेशियो इनको डिवाइड करके निकाल लेना, तो ये कभी भी आपको मिल जाएगा. यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस सेपरेटली. ओके, एनीवे, एंड कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी भी आती है, लेकिन इस प्रॉब्लम में अपन को ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेट अस सी. अब अपन चलते हैं, ये क्या पूछ रहा है. A load of 10 kilonewton is raised. तो अब गिवन डेटा पे चलते हैं. टेन किलो न्यूटन मतलब कितना होता है, 10,000 न्यूटन. Screw jack has a square threaded screw of pitch 12 mm. अब ये कैसे लिखूंगा मैं, पिच को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या नोटेशन है पिच का, स्मॉल पी. देखते हैं ये कहां काम आएगा. इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला भी है जो आपको याद रखना है. एंड मीन डायमीटर ऑफ 50 mm. थ्रेड्स से रिलेटेड आपको ये बात मैंने सिखाई थी. ऐसे थ्रेड्स होते हैं, मैंने आपको कहा था कि आउटर डायमीटर होता है, इनर डायमीटर होता है और मीन डायमीटर होता है, जो कि अपन थ्रेड्स का लेते हैं. सो दिस डायमीटर, द मीन डायमीटर इज स्मॉल d, और यही दिया जाता है थ्रेड्स का. ठीक है. पिच क्या चीज होती है, the vertical or axial distance between consecutive threads और adjacent threads. तो ये दोनों चीजें mm में दे रखी है, mm में ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. If an effort of 100 Newton is applied, इसको भी कॉपी कर लेते हैं. P, अब ये कैपिटल P है, Yes, sir, capital P. 100 न्यूटन. और क्या गिवन डेटा है, if effort of 100 Newton is applied at the end of lever to raise the load, what should be the length of the lever used? Length of the lever का मतलब है, ये आपसे पूछ रहा है, L पूछ रहा है, स्मॉल L. और आपके फॉर्मूले में ये स्मॉल L देखो मैकेनिकल एडवांटेज में भी आती है, वेलोसिटी रेशियो में भी आती है. ठीक है. और ये स्मॉल L अगर आप फिगर में देखना चाहें कि कौन सी चीज है, दिस इज द लेंथ ऑफ द हैंडल. ये L पूछ रहा है आपसे. बट एनीवे, एक इस ट्रायंगल से आपको एक फॉर्मूला और याद रखना होता है. अनदर फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर रिगार्डिंग द पिच इज दैट tan of alpha is equal to pitch upon pi t. ये फॉर्मूला और आपको याद रखना है फॉर स्क्रू जैक. ये इस ट्राइंगल से आता है. देखो, P इज द परपेंडिकुलर, पाई डी इज द बेस एंड अल्फा इज द एंगल ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल. तो P बाय पाई डी जो है वो tan अल्फा होगा. ये और याद रखना है. बस इतनी सी इंफॉर्मेशन काफी है आपके लिए.
ठीक है। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.5, ये भी नोट कर लेते हैं। म्यू इज इक्वल टू 0.5, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एक और फॉर्मूला आपको साथ में याद होना चाहिए, tan ऑफ फ्रिक्शन एंगल इज म्यू। एक तो ये फॉर्मूला हो गया याद रखने का। दूसरा फॉर्मूला आपको याद जो करने को कहा था, tan ऑफ एल्फा इज इक्वल टू पिच अपॉन पाई डी। ये दोनों tan के फॉर्मूले हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है याद रखना। tan फाई म्यू है, tan अल्फा पी बाई पाई डी है। अब हो गई आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म। अब देखो क्या निकालना है, स्मॉल एल निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो ये फाई और अल्फा निकाल लो, ठीक है। फाई कैसे निकालूंगा मैं, tan इनवर्स ऑफ म्यू, और म्यू गिवन है तो मेरा फाई निकल गया। आगे चलूं, अल्फा कैसे निकालूंगा, tan इनवर्स ऑफ पी बाई पाई डी। क्या इसमें p और स्मॉल d गिवन है क्या, यस, स्मॉल p इज गिवन, स्मॉल d इज आल्सो गिवन। तो अगर स्मॉल p और स्मॉल d दोनों मेरे को प्रॉब्लम में गिवन है तो मेरी tan इनवर्स ऑफ p बाय पाई डी भी निकल जाएगी। तो अब मेरे को अल्फा भी पता लग गया। तो नाउ आई हैव विथ मी द वैल्यूज ऑफ फाई एंड अल्फा, ठीक है। अब देखो ये क्या पूछ रहा है आपसे, आपको w दे रखा है, आपको p दे रखा है, तो मैकेनिकल एडवांटेज निकाल सकते हो क्या, मैकेनिकल एडवांटेज पता लग गया। स्मॉल डी आपको गिवन है, अल्फा आपने पता कर लिया, फाई आपने पता कर लिया। तो क्या इस एक मैकेनिकल एडवांटेज के फॉर्मूले को लेकर के आप एल पता कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, जस्ट टेल मी। यस सर। सीधी सीधी सी बात है। लेकिन अगर आप इसका किताब में सॉल्यूशन देखोगे तो इन्होंने बहुत इसको लंबा चौड़ा घुमा फिरा करके ले लिया है, ठीक है। इन्होंने अननेसेसरीली टॉर्क और सब चीजों को इंक्लूड कर लिया है, बट यू डू नॉट नीड दैट। इसीलिए मैंने ये प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग से डिस्कस किया है, क्योंकि अगर आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो आप थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाओगे, बोलोगे यार ये सब तो बहुत ही लंबा चौड़ा लफड़ा है, ये अपने से होगा नहीं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि आपको किताब में दिया हुआ सॉल्यूशन हर बार नहीं फॉलो करना है। यू कैन इजीली सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ सिंपल फॉर्मूले, ठीक है। ये देखो W बाई पी, W और P दोनों प्रॉब्लम में गिवन है, तो मैकेनिकल एडवांटेज मिल गई। स्मॉल एल निकालना है, अल्फा और फाई दोनों आपने निकाल लिए, स्मॉल डी गिवन है, तो सारे पैरामीटर गिवन है, स्मॉल एल निकाल लो, खत्म बात, ठीक है। अब इसी तरीके से आपसे एक और चीज इसमें पूछी गई है, स्टेट वेदर द स्क्रू इज सेल्फ लॉकिंग और नॉट। सेल्फ लॉकिंग की कंडीशन क्या होती है, किसी को याद है क्या, एनीबडी। सर एफिशिएंसी लेस देन 50%। एफिशिएंसी अगर 50% से कम है तब तो ये सेल्फ लॉकिंग होगी, और अगर एफिशिएंसी ग्रेटर देन 50% है, देखो इसको लेस देन और इक्वल टू रखते हैं अपन जनरली, ठीक है। एग्जैक्ट 50% है तो भी सेल्फ लॉकिंग हो जाएगा वो, लेकिन अगर 50% से ज्यादा है तो नॉट सेल्फ लॉकिंग, ये याद रखना है। अब एफिशिएंसी निकालने का क्या क्या फॉर्मूला है आपके पास में, देखो एफिशिएंसी के लिए मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो ही तो चाहिए। अब आपने एल भी निकाल लिया है तो अब वेलोसिटी रेशियो भी निकाल लो। एल पता लग गया, स्मॉल डी पता है, अल्फा पता है, तो वेलोसिटी रेशियो पता है, मैकेनिकल एडवांटेज भी पता है। एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। इसको निकालो, और अगर ये 50% से कम आती है, यानी कि 0.5 से कम आती है, तब तो बोल दो कि ये सेल्फ लॉकिंग है, और अगर 0.5 से ज्यादा आती है तो बोल दो कि नॉट सेल्फ लॉकिंग है, बस खत्म बात, ठीक है। So with this, we close the lecture for today, and I will take your attendance now. अच्छा, आज मैं आप लोगों का पूरा अटेंडेंस नहीं लूंगा क्योंकि अपना थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग गया है।
your next class teacher would be waiting for you. So I will just ask Aman Jain, जो अपने डबल हैं क्लास में, उनके नाम बता दो. 22 23 दोनों है क्या? 22 की तो सर पता है. 22 is here. 23 है क्या? 23 अमन? नहीं है सर वो नहीं है. ठीक है. Only 22 is there. Now please leave and go to the next class. हाँ हाँ बोलो. सर आशीष का मैसेज आया है इस चैट में कि भाई उसको किसी अर्जेंट कॉल के लिए लीव करनी पड़ेगी क्लास, उसकी प्रेजेंट लगा लेना सर आप. अच्छा वो था क्लास में वैसे. आशीष का पूरा Yes, नाम बताओ sir. क्या है? आशीष कुमार. सर पूरी क्लास में था, लास्ट मिनट पे उसने आशीष कुमार ही है क्या नाम? कुमार के Yes, आगे sir. कुछ नहीं है? आशीष कुमार चौधरी. सर ये 38 जो है. इसका रोल नंबर 38 है. 38 नहीं है सर, 36 है. 36. ठीक है. हाँ 36. ओके ठीक है. अब आप जा सकते हैं. नोटेड. ओके सर. सर भास्कर